पर जो बड़ा आरोप लगा है उस पर इस वक्त लोकसभा में हंगामा हो रहा है। दरअसल शिवसेना के 11 सांसदों पर आरोप है कि रमजान के महीने में रोजे रखे हुए एक शख्स को उन्होंने जबरन रोटी खिलाई और ये सब कुछ महाराष्ट्र सदन, दिल्ली के जो महाराष्ट्र सदन है उसमें हुआ। कैंटीन मैनेजर को जबरन रोटी खिलाई गई। हालांकि शिवसेना सांसद इस घटना से इनकार कर रहे हैं, लेकिन इस घटना के बाद लोकसभा में इस वक्त हंगामा हो रहा है। सुनते Madam Speaker, the Honorable Minister has given an elaborate answer. I congratulate the Honorable Minister. However, Madam, Sarva Shiksha Abhiyan, the Education for All movement, is Government of India's flagship program for achievement of universalization of elementary education in a time-bound manner. For the children of 6 to 14 years, Madam, as a fundamental right. The program was pioneered by Sri Atal Bihari Vajpayee. However, Madam, in spite of best efforts from state and central governments, there are many dropouts from the poor families. I would like to know from the Honorable Minister how we are going to enroll all the poor children also. 1 minute, please. 1 minute. देखिए, 1 मिनट, मुझे भी मालूम। ओहो, बाप रे बाप, गला बैठ जाएगा। प्लीज प्लीज, मुझे भी मालूम, मैं समझ रही हूँ जो भी आपके किसी के भी धार्मिक आस्थाओं पर चोट हुई है नहीं हुई है, मैं सुनने से मना नहीं कर रही हूँ, प्लीज। लेकिन थोड़ा सा तो नियम से चलने दो। जो भी बाहर कुछ हुआ है, फिर भी मैंने कहा है, माननीय खड़गे जी मेरे पास आए थे अभी, और मैंने कहा है मैं शून्यकाल में आपको ये मामला उठाने दूंगी। शिवसेना के भी हमारे गीते जी भी मेरे पास आए हैं, दोनों एक दूसरे की बात समझ लेना। आप भी आए थे, मैं आपको भी दूंगी, मैंने कहा है। लेकिन कहने के बाद भी अगर आप चिल्ला नहीं चाहो तो मैं कुछ नहीं कर सकती। आप अपने गले को, मैं शून्यकाल में जरूर सबसे पहले आपको ही दे दूंगी। ओके, आई विल और बाद में आपको दूंगी। थम्बी दुराई जी, आप बार बार उठा रहे हैं, देख लीजिए, पर ऐसा मत करो प्लीज। यस यस मिस्टर, बड़ा इम्पोर्टेंट इश्यू है और हम नहीं, एक समाज की भावना को ऐसा ये करना, ये बड़ा। हाँ, मैं करूँगी स्पीकर, मैडम स्पीकर, और वो भी महाराष्ट्र सदन में रेज करना और उसके ऊपर चर्चा करना बिना अनुमति कुछ बोले, बिना अनुमति ऐसे सेंसिटिव इश्यूज को रेज करे, एक गलत मैसेज जाएगा। इसलिए मेरा प्रार्थना है आप सुनने के बाद में इसमें कितना मेरिट्स है इसको देखने के बाद अनुमति दीजिए, हम चर्चा करेंगे। मैंने वही बोला है कि मैं शून्यकाल में, हाउस में कैसा होता है जी, आप ऐसा कैसा होता है? शून्यकाल में उठा दो। Nobody knows what is the fact. Nobody knows what is the fact. मैंने Let somebody make inquiry and then come out. बोला, प्लीज। We are trying to discuss the conduct of the members of the house. आपसे ज्यादा मैं भावना प्रधान हूँ, आपसे ज्यादा मैं भी भावना प्रधान हूँ, तो प्लीज बैठिए, मैं शून्यकाल में अलाउ करूंगी। यस, सप्लीमेंट्री। Yes, madam. In spite of best efforts from state and central governments, there are many dropouts from poor families. I would like to know from the Honorable Minister how we are going to enroll all the poor children. नहीं, ऐसा मत करो। Whether we are going to take the help of local bodies like Jilla Parishad and Taluk Panchayats, and how we are going to enroll all the poor children. I would like to know from the Honorable Minister. मैं करूंगी ना, I will. Madam Speaker, through you, I'd like to attract the attention of the honourable member and share the concern expressed by the honourable member vis-à-vis dropouts. I would like to tell the honourable member through you, Madam Speaker, that though dropout rates of girls have decreased significantly, dropout rates of tribal children is a matter of deep concern for us. A number of strategies have been adopted to reduce dropout rates, which include inter alia opening of new schools, provision of infrastructure like additional classrooms, toilets and drinking water, recruitment of additional teachers, teachers training, distribution of free textbooks and uniforms, special training for mainstreaming out-of-school children, inclusive education for children with disabilities and community mobilization,
I would like to attract the attention of the honourable member through you, Madam Speaker, that the annual average dropout rate at primary has reduced from 9.11% in 2009-10 to 4.67% in 2013-14. I would also like, Madam Speaker, through you, appeal to the honourable member that there is a district level committee chaired by the senior most member of parliament which reviews the SSA periodically in the district, and I would urge the member to partake in those meetings. Thank you. तो लोकसभा की तस्वीरें आप देख रहे थे। लोकसभा की कार्यवाही को चलने नहीं दिया जा रहा है, हंगामा चल रहा है महाराष्ट्र सदन की इस घटना को लेकर। पूरी घटना क्या है, किस वजह से यह हंगामा हो रहा है, देखिए रजनीश की इस रिपोर्ट में। रमजान के पाक महीने में रोजे रखे हुए एक शख्स को जबरन रोटी खिलाए जाने का मामला सामने आया है। पूरा मामला 17 जुलाई को दिल्ली के नए महाराष्ट्र सदन का है। 17 जुलाई को दिल्ली के जो नए महाराष्ट्र सदन में IRCTC जो कि इस सदन में केटरिंग की जो सुविधा है वो मुहैया करवाती है। यहाँ पे काम करने वाले IRCTC के जो है सुपरवाइजर, केटरिंग सुपरवाइजर अरशद जुबैर ने IRCTC से ये कंप्लेंट की कि 17 जुलाई को यहाँ पे शिवसेना के कुछ सांसदों की मीटिंग थी और लगातार यहाँ पे जो है महाराष्ट्र का केटरर लाने की बात कर रहे थे और इसी नाराजगी के चलते उन्होंने यहाँ पे मुहैया करवाई जाने वाली सभी सुविधाओं की नाराजगी जाहिर की और इसी के चलते 17 जुलाई को सभी सांसद जो है महाराष्ट्र सदन की जो है किचन में घुस आए और यहाँ पे आने के बाद उन्होंने न केवल अरशद जुबैर के साथ बदतमीजी की बल्कि पूरे किचन स्टाफ को बड़ा बुरा भी कहा। इसके बाद उन सभी सांसदों ने जिस तरीके से अरशद जुबैर ने शिकायत की कि उन्होंने जबरन उनके मुंह में रोटी डाल दी जिसके चलते उनका जो रोजा है वो टूट गया। इस बात की शिकायत मिलने के बाद IRCTC ने इस पूरे मामले की शिकायत महाराष्ट्र के रेसिडेंट कमिश्नर से की। रेसिडेंट कमिश्नर ने इस पूरे मामले पे खेद जताया। उनका ये कहना है कि इस पूरे मामले की जो है जांच की जाएगी और महाराष्ट्र सरकार ने भी इस बात का आश्वासन दिया है कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। अगर जो भी इस पूरे जांच में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जब से ये पूरा मामला सामने आया है तब से यहाँ का जो किचन है वो बंद है और बताया जा रहा है कि अब यहाँ पे नए जो है महाराष्ट्र के किचन केटरर की तलाश शुरू कर दी गई है। कैमरामैन देव के साथ रजनीश शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। आरोप शिवसेना के 11 सांसदों पर लग रहे हैं। उनमें ऐसा कहा जा रहा है कि संजय राउत भी वहां पर मौजूद थे, जो कि प्रवक्ता हैं शिवसेना के, वो भी उस वक्त वहां पर मौजूद थे। लेकिन सफाई में शिवसेना के सांसदों की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है, शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत क्या कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। बहुत गलत इल्जाम है ये, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हुआ। शिवसेना के जो सांसद है सभी की धार्मिक भावनाओं की कदर करते हैं। इस प्रकार से हमारे यहाँ से कोई करने वाला सांसद नहीं है और पैसे लेते हैं हमसे, तो हम फुकट में नहीं रहते वहां। लेकिन ये सदन की व्यवस्था जो है ना दुर्व्यवस्था बनी है उसके लिए जिम्मेदार राज्य की सरकार, राज्य का PWD डिपार्टमेंट, उनके मंत्री और वहां जो बैठे हैं रेसिडेंट कमिश्नर जो महाराष्ट्र के नाम को धब्बा है वहां बैठ के, तो ये सब जिम्मेदार। ये हमारी व्यवस्था के खिलाफ की लड़ाई थी, न किसी मजहब के खिलाफ की लड़ाई थी और ये व्यवस्था के खिलाफ की लड़ाई 17 जुलाई से चालू है। अगर वो हादसा उस दिन हुआ तो आज क्यों बताए, आज क्यों कंप्लेन? ये सारा झूठ है क्योंकि जो व्यवस्था करने वाले यहाँ के निवासी आयुक्त है उनके ऊपर कार्रवाई होनी जा रही है, वो उनके ऊपर प्रिविलेज मोशन हो रहा है, तो उन्होंने खुद को डिपेंड करने के लिए इसको अलग से रंग देने की कोशिश की है। मैं उसकी बड़ी कड़ी निंदा करता हूँ। आप अगर देख लो कि आपने खुद ने सारी मीडिया यहाँ उपस्थित थी, ऐसे नहीं कि एक मीडिया नहीं उपस्थित थी, पूरी मीडिया थी। ऐसा नहीं कि एक सांसद था, 15-20 सांसद रहे। 15-20 सांसद उपस्थित होने के बावजूद भी निवासी आयुक्त उपस्थित नहीं होता, मीटिंग पे नहीं आता, इसका मतलब क्या है? गलत काम करता है ना। अगर वो सही है तो सामने आता, कुछ झगड़ा नहीं था उस वक्त। तो सिर्फ बताना था कि भैया ये हमारी सभा से कितने दिन में निराकरण करोगे, और उनके CS उसी दिन मिले ना चीफ सेक्रेटरी। तो फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये जानबूझकर किया जाता है। मैं सभी को आश्वासित करता हूं, अगर ये गंदा पाप हमने कभी किया नहीं, न करते हैं। शिवसेना इन आरोपों पर सफाई दे रही है, लेकिन विपक्ष ने अपने तेवर कड़े कर लिए हैं। महाराष्ट्र में बहुत दिनों से बात हो रही है कि उत्तर भारतीय लोगों को, चाहे मुस्लिम समुदाय का चाहे हिंदू के समुदाय का, उनके साथ भेदभाव का बर्ताव किया जा रहा है और महाराष्ट्र सरकार चुप बैठी रहती है। हम लोगों ने बहुत बार ये बताया कि देश का हर नागरिक देश का नागरिक है, वो मद्रासी, गुजराती या उत्तर प्रदेशी, बिहारी नहीं है।
लेकिन राजनीतिक चलते हुए जिस तरीके से महाराष्ट्र में हो रहा है या शिवसेना ने जो किया है उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। ये बड़ी दुखद बात है अगर इसमें सच्चाई है, और हो सकता है इसे बढ़ा चढ़ाकर कहा गया हो, इसकी जांच करना आवश्यक है। और अगर किसी भी, चाहे वो सांसद हो या कोई साधारण व्यक्ति हो, अगर किसी ने भी इस किस्म की हरकत की है कि किसी के धार्मिक कार्य में बाधा डाली हो, उसका रोजा जबरदस्ती तोड़वाया हो, तो ये बड़ी गंभीर समस्या है। और इसकी वजह से ये भी जरूरी है कि हम कोई सेंसेशनलाइज ना करें इसको। इसकी पूरी तरह से खामोशी से जांच होनी चाहिए, सच्चाई तक पहुंचना चाहिए, उसके बाद जो कानूनी कार्रवाई वो होनी चाहिए। हिले हुए हैं, इनकी संतुलन की बात आ रही है आज के दिन कि ये लोग ऐसे सोच भी सकते हैं, और इसमें सॉरी कह दिए तो बात खत्म। तो अब इनको सोचना चाहिए, अगर वो जिम्मेदार आदमी है, अपने आप को मानते हैं और खड़े होते हैं, तो सारा देश की जिम्मेदारी भी उनको